Uh, I think we should start the meeting. Srividya, are you? Hello. Sudeepan, I think the organizer of the meeting is Sudeepan. Right. Very good evening, sir. Yes. Good evening. Good evening, Sudeepan. I think we should start now. It's already approximately more than 150 people have joined, and people will keep on joining. Once we must start now. No, Mama. Time. All the participants keep your phone muted. आप सबको बोला जाएगा कि जब आप अपना फोन ऑन करने के लिए, लेकिन अभी सभी को फोन अपना म्यूट पे रखना है. प्लीज कीप योर फोन म्यूटेड. देखो ऐसा है कि यहाँ आके करोगे ना. दूसरा sir, we'll wait for a minute and then we can start, sir. प्रकाश महतो It might be on the way, and since corporate BC, we understand they also have joined and all the TL and all, so it is very important for us to understand the functionality of the device. And it's basically like, it's just a migrations of applications or the vendor from FSS to Integra. So we are right now current applications, we are the fintech applications partner for bank, where we are providing financial inclusions, AEPS in-house solutions, and we are also supplying you the device. So who is Integra? I'll give you brief 5-minute introductions about Integra, so that all of us know that what to reach on Integra and what is our project engagement with the bank.
So we are and 40 years aged organizations. We are providing our solutions majorly into BFSI telecom space. We are pioneer in financial inclusion solutions, and we have our solutions majorly into mobile technology, biometric smart cards based solutions. We are also one of the corporate BC and a leading corporate BC who is engaged with 23 plus nationalized and private bank, where we are managing 13,000 agents on the ground. So this is a core area where we provide our applications. We provide our applications on financial inclusions, which is AEPS we are providing to bank. Solutions. We have a solutions on video KYC, KYC, digital KYC. We majorly, like I said already that we have solution which is digital, payment platform like BBPS, UPI, and other solutions. Our other applications are we work very closely with UIDAI. So most of our and we have been working with them since inception. So we have most of our solutions or applications given to BFSI, telecom, government sector, which is regulated or guided by Aadhaar. So we also have RPA and bot solutions, a lot of automations and other things which is going on right now. Multi-factor authentications is one thing that we give it to many clients. So this is kind of a core area of applications or services that we provide to our client. These are majorly our client. This is some of our client list. We thought we'll present you mostly all the public sector banks are there. Large private sector bank like HDFC Bank and is also there where we are providing similar kind of technology. Of course, HDFC Bank where we are providing APS solutions. This is like we said, we are also a corporate BC, and then we have engagement with large bank, many banks. So we have 13,000 agents managing on the field. We have since Integra also provides a lot of technology solutions for the automations of ration shop and across 5 to 7 states. So we have our EPDS agents where we are managing 25,000 agents on the ground. We have right now we also provide doorstep banking services for 12 public sector bank. So where we have given the solutions and we are managing 4,000 agents where we are providing end-to-end doorstep banking solution. So what is our engagement with the bank, and this is the part where we should be all aware what is our engagement and what we'll be doing for the bank. We are providing the technology part, which is the APS solutions. You'll be probably running in your device, and you'll be accessing and then doing the transactions using the same applications. So what is the difference between the previous applications and our applications? Previous application was hosted outside, hosted in FSS environment, which is outside HDFC Bank. Whereas we have deployed applications which is hosted in premise bank, and it has been guided and regulated. All the checks and mandatory things are probably put in checks by bank. So we are following bank rules and guidelines or their cybersecurity guidelines for the applications. So it is more secured applications in terms of uses. And the second part, we are also giving to utilize these applications the micro ATM machines, the device that you probably all of us may not have received, but most of us have received this device. So all these devices which we will be supplying. So as a part of our device supply, and what are the kind of functionality that you will be doing? We are told that you'll be majorly doing plus pin transaction. Sudeepan, I'm just intervening here. Hello. Yes, sir. Yes, Sudeepan, I'm intervening here. I mean, all in all, training in English will not do good to even Correct, the tellers. If everyone is not comfortable there. But since a large in between, I can understand your point of view, but not everywhere in northern part of India is comfortable in English. Correct? So in between, you have to mention them in Hindi or also explain them in Hindi. I mean, that's when they can understand things. Isn't it? Otherwise, yes. Thank you so much, sir. बीच में आप ना थोड़ा सा उनको हिंदी में गाइड करते रहिए. Otherwise, yes. ठीक है, sir. Thank you so much, sir. What I was telling that of course training हम हिंदी में and English में दोनों में देंगे. I'm just telling what is our engagement with the bank. तो हमने already बता दिया कि हम आपको application जो बैंक को provide कर रहे हैं, हम डिवाइस जो आपके पास पहुंच रहा है वो भी हम सप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो नया डिवाइस है, दिस डिवाइस इज लाइक it's all in one device. It's an upgradation from your existing device. जो आपका पहले डिवाइस था that was not Android and 4G डिवाइस, और ये डिवाइस में मल्टीपल पेरिफेरल्स नहीं है, सिंगल डिवाइस है.
जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक स्कैनर, आपका प्रिंटर, आपका कार्ड रीडर, सारे कुछ पिन ऑन ग्लास सब कुछ एक ही डिवाइस में मिल जाता है. सो इट इज मोर और लेस लाइक योर मोबाइल. यो आपका जो स्मार्टफोन आजकल आता है, स्मार्टफोन बेस्ड एक लाइक माइक्रो एटीएम दिया गया है आपको, which is more user friendly, and आपको आप once you start utilizing it, you'll realize it. This is how comfortable you'll feel like in terms of using this device. तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रा का, तो इंटीग्रा आपको डिवाइस देंगे, ट्रेनिंग जो हम ऑफकोर्स फील्ड में भी आपको ट्रेनिंग करेंगे. एंड क्योंकि अभी हमारा इंटेंशन है जितना डिवाइस, जहाँ पे डिवाइस मिल चुका है एंड वहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कराने के लिए. और बिकॉज डिवाइस में जितना फंक्शनलिटी डालना था हमें, वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस डिवाइस ऑन बोर्डेड. और ये डिवाइस हमने हमारे तरफ दिया जाए. तो ये डिवाइस ऑन करने के बाद आपको आसानी से आप कैन प्रोसीड विद द फंक्शनिंग ऑफ द डिवाइस, क्योंकि आपको ज्यादा लाइक ऑन द ग्राउंड आपको कुछ करना नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्विच ऑन द डिवाइस एंड प्रोसीड फर्दर. लाइक विल गाइड यू आफ्टर दिस, लाइक आफ्टर माय अगर कोई भी दिक्कत आता है, इफ द डिवाइस कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, स्कैनर काम नहीं कर रहा है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, या फिर डिवाइस का फंक्शनलिटी में कुछ इशू आ रहा है, तो आप इंटीग्रा को फोन कर सकते हैं. बैंक विल सर्कुलेट कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन्स टू रीच. वो जो आपको हेल्प डेस्क सेंटर रहेगा, वो हेल्प डेस्क सेंटर में भी इंटीग्रा सपोर्ट करेगा आपको, टू इंश्योर कि आपका जो डिवाइस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो इशू हम लोग रिजॉल्व करने के लिए वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल. आफ्टर दैट ऑल्सो जो पेपर रोल आपको चाहिए होता है फॉर द यूजेस, वो पेपर रोल भी इंटीग्रा सप्लाई करेगा, लाइक अंटिल फर्दर गाइडेड बाय बैंक. जब तक till such time bank has not informed us to stop, we will keep supplying you the paper roll which is required in the device. तो हमारा engagement with bank is for applications और आपको device देने के लिए. And throughout next how many years you'll be using the device, you'll be connected to Integra. I will not take much time explaining what will be our engagement and role, क्योंकि हम we will jointly have to work in the field from now where you have received the device. I'm sure as per our delivery count, we have 60 plus device which has reached on ground. एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू हु हैव जॉइंड, जो आप लोग ने ज्वाइन किया उनमें से ऑलरेडी सबके पास तो डिवाइस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू हैव द डिवाइस. तो फ्रॉम हियर ऑन आई विल रिक्वेस्ट मोहन सर और Mallikarjun, anyone to take it forward and let's try and train them and help them to do at least one successful transactions today. Before I even give you, this is kind of hardware you have already received. वो जो ऑल इन वन हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, एंड डिटेल्स इन अबाउट द डिवाइस आपको मल्लिकार्जुन सर या मोहन सर एक्सप्लेन करेंगे. Thank you, Sudipan. Can you make I can me stop. presenter? Yeah. You are already a presenter. No. It has removed. Okay, now I can able to. Mohan sir, shall I proceed? Yeah, you can proceed, but Hindi में बोलिएगा. So majority of the people are from Hindi, they can able to understand. Okay. Good evening all. आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे डिवाइस के बारे में, और उसमें जो एप्लीकेशन है और जो सिम कार्ड लगा हुआ है उसके बारे में, और वो कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. और वो हम ट्राई करेंगे कि वी कैन गाइड यू ऑल द वे. ओके, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर ये डिवाइस है, ये एक्चुअली एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस रहेगा, जिसमें
सभी तरह के पेरिफेरल्स जो रिक्वायर्ड है एईपीएस और कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए वो पेरिफेरल्स ऑलरेडी एम्बेडेड है। जैसे कि आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर है और कार्ड रीडर इज़ अवेलेबल और प्रिंटर इसमें अवेलेबल है। तो इसके साथ इसके अलावा और आपको आइरिस स्कैनर और कैमरा भी मिलेगा जो करेंटली कुछ यूज़ नहीं है, पर इन फ्यूचर बेस्ड ऑन बैंक्स रिक्वायरमेंट it can be used for doing some type of transactions like for other you can use iris scanner like that you can use तो उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो जो स्क्रीन के ऊपर जो आप स्लाइट ये देख रहे हो वो कार्ड मैग्नेटिक स्वाइप कार्ड रीडर का है ऑप्शन दिया हुआ है और स्क्रीन के नीचे आपको चिप बेस्ड कार्ड रीड करने के लिए स्लॉट मिलेगा पर बैंक प्रिफर करता है कि चिप बेस्ड कार्ड ही यूज करना है तो करेंटली ये मैग्नेटिक स्वाइप रीडर जो भी है वो आप यूज नहीं कर सकते चिप बेस्ड कार्ड ही यूज करना पड़ेगा तो इस लेफ्ट साइड का जो इमेज है वहाँ पर आप देख सकते हो आप देख सकते हो ये चार्जिंग ये वाला चार्जर कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिया गया है वैसे ही आपको राइट साइड में जो एक छोटा सा बटन दिखेगा राउंड शेप बटन वो आपको डिवाइस स्विच ऑन करने के लिए और स्विच ऑफ करने के लिए आपको यूज होगा तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और पीछे की तरफ से टॉप में आपको प्रिंटर का ऑप्शन है तो जो नीचे की पार्ट है पीछे की तरफ वो उसमें आप बैटरी और सिम कार्ड आप देख सकते हो तो ये डिवाइस का मॉडल है तो इसको आप यूनिपॉस A5 मॉडल बोलते हैं और इसको आप METM या माइक्रो एटीएम भी बुला सकते हो तो ये जो भी ये जो भी डिवाइस हमने यहाँ से सप्लाई किया हुआ है उसमें मेजरली एयरटेल वोडाफोन और BSNL का सिम डाल के यहाँ से भेजा हुआ है एज अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क अवेलेबिलिटी एट BC पॉइंट तो जो भी हमने यहाँ से सिम डाला हुआ है वो सब लाइरा से वाइट लिस्टेड है लाइरा इज ए नेटवर्क प्रोवाइडर फॉर बैंक जो भी इस सिम से नेटवर्क के लिए रीच होता है वो लाइरा के थ्रू ही पास ऑन होता है जो भी सिम लगा हुआ है उसके अलावा अगर आप कोई और सिम लगाना चाहे या फिर आप हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट करना चाहे इट इज़ नॉट पॉसिबल और वो ट्रांजैक्शन भी अलाउ नहीं अगर कनेक्ट करोगे फिर भी आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पाओगे क्योंकि वो लाइरा से वो वाइट लिस्टेड नहीं रहेगा जो भी सिम आप दूसरा वाला लगाओगे तो अगर आप कुछ नेटवर्क वहाँ पर एयरटेल का ठीक तरह से नहीं आ रहा है पर आपको एयरटेल का सिम दिया गया है तो उस केस में आप चाहो तो ब्रांच को अप्रोच करके वो आप चेंज करवा सकते हो एज अकॉर्डिंग टू नेटवर्क अवेलेबिलिटी एट BC पॉइंट वो चेंज करवा सकते हो पर फिलहाल जो भी सिम कार्ड डाल के भेजा हुआ है उसी को आपको यूज करना पड़ेगा तो उसके अलावा आप some of you already know about verticals majorly there are 4 verticals for which we have supplied devices corporate salary RBG SLI and RBBE तो कॉर्पोरेट सैलरी यूजर को इज बैंक की तरफ से वो एम्प्लॉय रहेंगे जिनको सिर्फ eKYC का ऑप्शन दिया गया है और बाकी का 3 वर्टिकल को eKYC के साथ कार्ड ट्रांजैक्शन और AEPS आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ किया गया है तो
ये वर्टिकल्स में यही आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। जहाँ तक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो एप्लीकेशन अलाउस टू डू 2 टाइप्स ऑफ लॉगिन। बीसी 2 तरह की लॉगिन कर सकता है। एक पासवर्ड बेस्ड लॉगिन रहेगा और दूसरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहेगा। तो पासवर्ड बेस्ड लॉगिन में आप अगर बीसी करेगा तो वो सिर्फ कार्ड बेस्ड ट्रांज़ैक्शन कर पाएगा, पर एईपीएस और ईकेवाईसी नहीं कर पाएगा। Whereas if BC done two-factor authentication like आधार प्लस ओटीपी लॉगिन करेगा, तो वो एईपीएस कार्ड ट्रांज़ैक्शन और ईकेवाईसी सब तरह की ट्रांज़ैक्शन वो कर पाएगा। पर पासवर्ड बेस्ड लॉगिन में सिर्फ कार्ड बेस्ड ट्रांज़ैक्शन कर पाएगा। और हर एक सर्विस एईपीएस या कार्ड ट्रांज़ैक्शन में ये सारा चैनल्स इनेबल किया गया है। जैसे कि डिपॉज़िट, विथड्रॉवल, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट ये कॉमन रहेगा एईपीएस और कार्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए। पर कार्ड ट्रांज़ैक्शन में और एक एक्स्ट्रा फीचर रहेगा आपको ग्रीन पिन। ग्रीन पिन एक्चुअली यूज़ होता है जब फर्स्ट टाइम कोई कार्ड यूज़ करना चाहता है, मिला है किसी को, तो वो बीसी के पॉइंट पे आके उसका फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड चेंज करना है, वो वहाँ पे कर सकता है, ये ग्रीन पिन यूज़ करके। और इसके ये 2 सर्विस के साथ ईकेवाईसी सर्विस भी मिलेगा और ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट। ये ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट आप जो भी ट्रांज़ैक्शन ड्यूरिंग द डे करते हैं, वो सभी डिटेल्स आप ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो उसका ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट में आपको 2 तरह का मिलेगा, डिटेल्ड ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट भी मिलेगा और समरी भी मिल जाएगा आपको। तो ये जो स्क्रीन देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको डिवाइस ऑन करने पर ये जो पहला वाला इमेज दिख रहा है, ऐसा आपको डिवाइस में स्क्रीन आ जाएगा। अ, य ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, इससे आप बाहर नहीं आ सकते। जो भी एप्लीकेशन यूज़ करना है, जो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, उसी एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है और इससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एमडीएम लोडेड है। एमडीएम मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट बोले तो एक हेलो, जो बाकी लोग म्यूट कीजिएगा। हाँ मलिक, यू कैन कंटिन्यू। ओके। जो भी एप्लीकेशन इसमें रहेगा, उसी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मेजरली 3 तरह के एप्लीकेशन दिया गया है, जो आपको यूज़ होगा। पहला वाला एप्लीकेशन है यूनिपॉस ये5 डेमो ऐप। उसमें आप अगर आपके डिवाइस में कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है, लाइक कार्ड रीड नहीं हो रहा है, या फिर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क हो रहा है नहीं, और प्रिंटर वर्क हो रहा है कि नहीं, ये सब आप यूनिपॉस ये5 डेमो ऐप में आप चेक कर सकते हो। वैसे ये एक आरडी एप्लीकेशन दिया गया है, यूलेट आरडी सर्विस बोल के। उस एप्लीकेशन में आरडी का स्टेटस आप चेक कर सकते हो और डिवाइस का डिटेल आप ले सकते हो डिवाइस का। तो दूसरा वाला एप्लीकेशन है जो आप लोग मेजरली यूज़ करने वाले हैं, बीसीस करने वाले हैं। उस एप्लीकेशन एचडीएफसी बैंक एप्लीकेशन में आप एंटर करेंगे तो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा। अ अ, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन का प्रोसेस जो भी आता है, उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे डाल के दिखाया है। ये फर्स्ट टाइम लॉगिन करते वक़्त बीसी जब लॉगिन बटन पर क्लिक करता है, जैसे ये सेकंड इमेज में आप देख सकते हो, तो लॉगिन बटन क्लिक करने पर आपको यूज़र का या बीसी का डिटेल अपने आप सर्वर से फेच होता है। अगर यहाँ पे बीसी का डिटेल फेच नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो बीसी का एजेंट मैपिंग सर्वर की तरफ से नहीं हुआ है।
तो इसके बारे में बैंक से या फिर हम हमें कांटेक्ट करेंगे तो ये हम करवा देते हैं। बीसी ऑनबोर्डिंग हो गया वाला डिवाइस आपको बीसी का नाम दिखाई देगा, जैसे आप देख रहे हो इन थर्ड इमेज। तो बीसी का डेटा जब आएगा तो वहाँ पर आप प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप फर्स्ट लॉगिन करोगे तो इट यू मस्ट चेंज द पासवर्ड। तो अगर आपका यूजर नेम रहेगा R000633 as it is shown in this image, तो आपका पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा R006333 तो जो भी यूजर नेम रहेगा उसी यूजर नेम को पासवर्ड में डाल के उसके आगे आपको @12 डालना पड़ेगा। ये आपका डिफॉल्ट पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन रहेगा। तो ये पासवर्ड डालने के बाद आपको नया वाला पासवर्ड नीचे डाल के उसे सेम कंफर्म पासवर्ड में वही डाल के आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हो और उसके लिए आंसर सेट कर सकते हो। वो सब करने के बाद आप चेंज पासवर्ड कहेंगे तो वहाँ पर आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और आप फिर से लॉगिन करने के लिए पूछेगा। अ फिर से लॉगिन करते वक़्त आपको जो लास्ट इमेज आपको दिख रहा है, वो ऐसा आपको एक स्क्रीन आएगा जहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम उधर आपको पासवर्ड माँग रहा है, तो वहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन रहेगा लॉगिन विथ आधार। तो अ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन विथ आधार ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हुआ है। अगर आप आधार बेस्ड लॉगिन करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आधार नंबर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, आपको ओटीपी आएगा। उस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका लॉगिन बीसी लॉगिन ये ऐसा प्रोसेस रहेगा आपका। तो इसके बाद ये ईकेवाईसी ऑप्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो प्ले करूँगा, उसमें आप देख सकते हो कि अ, जैसे आप डिवाइस को लॉग इन करने के लिए, जैसे ऑन करने के बाद उसको लॉग इन करने के लिए पूछेगा, आप ये लॉग इन ऑप्शन दबाना पड़ेगा। तो अगर आपका डिवाइस बैकएंड में मैप हुआ हो तो बीसी का डिटेल्स अपने आप दिखेगा इधर। तो इधर प्रोसीड है ना, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो इसमें सारे का सारा बीसी दिखेगा आपको, लेकिन उसका अकाउंट नंबर, आधार नंबर और लोकेशन और बीसी नेम, बीसी आईडी सब कुछ दिखेगा आपको।
आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। ये पासवर्ड रीसेट करने के बाद दोबारा नया पासवर्ड के आपको लॉगिन करना पड़ता है। जैसे सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक ट्रांजैक्शन, ई-केवाईसी एंड मोर करके। जब भी आप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको फिर से 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक एईपीएस और एक कार्ड ट्रांजैक्शन और एक रिपोर्ट। पहले हम एईपीएस का ट्रांजैक्शन देखेंगे, कैसा ट्रांजैक्शन होता है। पहले हम कैश डिपॉजिट देखेंगे। कैश डिपॉजिट क्लिक करने के बाद आपको एक कस्टमर का कंसेंट पूछता है। ये कंसेंट में ना आपको डिफरेंट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज से पूछेगा आपको, ताकि वो कस्टमर पढ़ के अपना भाषा में पढ़ के वो समझ सकेंगे। तो आपको जैसे इधर हिंदी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर को अग्री करना पड़ेगा। देन इट विल आस्क फॉर द मोबाइल नंबर। कस्टमर मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ता है। इधर मोबाइल नंबर 2 बार एंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर एंटर करके फिर से आपको प्रोसीड करने से आधार नंबर पूछेगा। अगर बाय एनी चांस आपने अगर गलत मोबाइल नंबर लिख दिया, अगर मोबाइल नंबर और री एंटर मोबाइल नंबर में गलत नंबर लिख दिया, तो वो दोबारा एक एरर थ्रो करता है। तो इधर आधार नंबर एंटर करके देन वो आधार नंबर कौन सा बैंक में मैप हुआ है, उसका बैंक भी सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। इधर रिमार्क्स कॉलम में ऑप्शनल, आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही अधूरा छोड़ सकते हैं। देन क्लिक ऑन प्रोसीड। तो अभी कस्टमर का उंगली रखने के लिए एप्लीकेशन पूछेगा, कस्टमर हैज टू पुट हिज फिंगरप्रिंट। फिंगर रखने के बाद तो ट्रांजैक्शन यूआईडी से ऑथेंटिकेट होके उसका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है। सक्सेस होने के बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, एंड प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर भी दे सकते हो। और एक बीसी का कॉपी भी पूछता है प्रिंट आउट निकालने के लिए, चाहे तो आप प्रिंटर निकाल के आप बीसी भी रख सकते हैं, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप देख रहे हो, ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, पहले पिछले भी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। सो दिस आर ऑल द ट्रांजैक्शन डिटेल्स। कौन सा टाइप ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा है, डेट कौन सा है, तो बीसी का नाम, सब कुछ, आरआर नंबर, सब कुछ आ जाता है। तो ये कार्ड का एपीएस का कैश डिपॉजिट, ऐसे ही आप कैश विड्रॉवल ट्रांजैक्शन भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले आपको कंसेंट फॉर्म में एग्री होना चाहिए। बाद में मोबाइल नंबर 2 बार मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। बाद में आधार नंबर एंटर करके बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आधार नंबर कौन सा बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है।
देन अमाउंट को एंटर करना पड़ेगा। ये रिमार्क्स ऑप्शनल है आपको। तो देन क्लिक ऑन प्रोसीड, उंगली रख के ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कस्टमर को। एक बार ऑथेंटिकेशन सक्सेस होने से आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा। ये कैश विड्रॉवल है कि विड्रॉवल ट्रांजैक्शन है एपीएस का। अभी इसमें फंड ट्रांसफर भी है। ये फंड ट्रांसफर आधार टू आधार फंड ट्रांसफर हो जाएगा। जो पर्सन जो भी अगर आदमी कस्टमर आके ना दूसरा कस्टमर के लिए पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो उसका आधार नंबर और ये पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर द मनी उसका आधार नंबर से, मतलब इधर आधार नंबर से आधार नंबर ट्रांसफर हो जाता है, फंड ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद ये वाला है ना मिनी स्टेटमेंट रहेगा, ये वाला ट्रांजैक्शन समरी। The remitter Aadhaar number, the person who wants to transfer the money to some other person, उसका आधार नंबर पहले डालना पड़ेगा। देन नीचे ना बेनिफिशियरी आधार नंबर, किसको आपको पैसा जमा करना है, पैसा ट्रांसफर करना है, उसका आधार नंबर 2 बार एंटर करना पड़ता है। बाद में अमाउंट एंटर करना पड़ता है, जितना पैसा आपको उसको ट्रांसफर करना है। और क्लिक ऑन प्रोसीड। रिमार्क्स तो आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ऑप्शनल है। तो इधर पहले उंगली से ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाते तो देन योर फंड ट्रांसफर थ्रू एपीएस सक्सेस हो जाएगा। तो अगेन इसको आपको प्रिंट भी कर सकते हो, अगर कैंसिल भी कर सकते हो। सो दिस इज लेफ्ट टू एबीसी एजेंट। ये एपीएस का फंड ट्रांसफर करने का तरीका है। नेक्स्ट विल गो टू कार्ड। ये कार्ड बेस में है ना, ये कार्ड बेस में आपको पहला बार आपको कार्ड ट्रांजैक्शन करना है तो पहले आपको इनिशियलाइज डिवाइस करना पड़ेगा। एक बार फर्स्ट टाइम आपको इनिशियलाइज डिवाइस करना पड़ेगा, ताकि ये करने से क्या होता है की इंजेक्शन हो जाता है बैंक के सर्वर से। ये डिवाइस को की इंजेक्ट अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए फर्स्ट टाइम आपको इनिशियलाइज डिवाइस करना पड़ेगा। जैसे आप इनिशियलाइज सक्सेस हो गया तो की इंजेक्टेड सक्सेसफुली करके आपको मैसेज, देन क्लिक ऑन ओके, ताकि आपका डिवाइस अभी कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार है। तो इधर भी आपको सारी के सारी वही ऑप्शंस मिलेगा, कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल और बैलेंस इंक्वायरी सब कुछ मिलेगा। पहले एक बार कैश डिपॉजिट करेंगे। इधर पहले क्या करना है, अमाउंट को एंटर करना पड़ेगा। कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना चाहिए, वो अमाउंट एंटर करके क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड करने से क्या बोलता है, अभी कार्ड लगाने के लिए बोलता है। ठीक, अभी पूछ रहा है इंसर्ट कार्ड। ठीक है, इसका कार्ड रीडर नीचे रहता है, डिवाइस के नीचे रहता है। तो आपको पिन नंबर एंटर भी मांगेगा। पिन नंबर एंटर करके कंफर्म क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है। ये कैश डिपॉजिट थ्रू कार्ड पहले ही बता चुके हैं। ये कार्ड में मैग्नेटिक स्वाइप वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी ऑल द बैंक्स, सारे के सारे जो भी बैंक्स है अभी स्वाइपिंग कार्ड से अभी ईएमई चिप कार्ड से माइग्रेट हो चुके हैं। ज्यादा तक मेरे को जानकारी है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे हैव माइग्रेटेड टू ईएमई बेस्ड चिप कार्ड।
एक बार ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद द डिवाइस विल आस्क टू रिमूव द कार्ड, कार्ड निकालने के लिए भी पूछेगा। ये वाला कार्ड निकाल के ना आपको ओके दबाना पड़ेगा। तो ये कार्ड ट्रांजैक्शन होगा। सिमिलरली आपको मल्लिकार्जुन, यू कैन गो टू दिस वन, फंड ट्रांसफर। सिमिलरली आपको विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी सब कुछ ऐसे ही कर सकते हो। इसमें ना अभी हम जानकारी लेंगे ये फंड ट्रांसफर का, कार्ड से फंड ट्रांसफर कैसे करेंगे। कार्ड के फंड ट्रांसफर मतलब ये जो डेबिट कार्ड से बेनिफिशियरी का, जो किसी को भी आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, उसका अकाउंट नंबर में, इधर ईपीएस ट्रांजैक्शन में आपको क्या होगा, आधार से आधार फंड ट्रांसफर हो जाएगा। इधर कार्ड में कार्ड से आधार नंबर को, अकाउंट नंबर को ट्रांसफर हो जाएगा। पहले देख लीजिएगा इधर क्या होता है। पहले अपना कस्टमर, जो भी कस्टमर आके है ना, दूसरा आदमी को, अगर थर्ड पार्टी को उसको फंड ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले अपना कार्ड रखना पड़ेगा, बाद में बेनिफिशियरी अकाउंट को इधर अकाउंट नंबर इधर एंटर करना पड़ेगा। ये अकाउंट नंबर भी 2 बार एंटर करना पड़ता है। देन अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। तो रिमार्क्स इज ऑप्शनल, चाहे तो आप रख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। देन पिन, पिन को आपको एंटर करना पड़ेगा। अभी पैसा ट्रांसफर हो गया कार्ड से, कस्टमर के कार्ड से जो भी उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, वो बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये फंड ट्रांसफर थ्रू कार्ड में। उसके अलावा आपको एक ग्रीन पिन, पहले ही बोल चुके थे, ग्रीन पिन वेयर जो भी कस्टमर आके ना आपका डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकता है। इधर तो पिन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को भी एजेंट के पास आने के बाद कार्ड रख के ना, मल्लिकार्जुन, यू हैव टू गो बैक। हाँ, ग्रीन पिन दबाने के बाद इट विल आस्क यू टू एंटर द मोबाइल नंबर। पहले मोबाइल नंबर पूछेगा, जहां मोबाइल नंबर वो आदमी के अकाउंट नंबर से मैप हुआ है। पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद वो मोबाइल नंबर में ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आपको एंटर करना पड़ेगा 2 बार। एक बार ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई के लिए फिर से ओटीपी पूछेगा। 2 बार ओटीपी एंटर करने के बाद देन आपको नया पिन एंटर करने के लिए अलो करता है आपको। देखिए अभी न्यू पिन एंटर करने के लिए पूछ रहे हैं। जो भी आप रख सकते हो, 4 डिजिट वाला पिन आप एंटर करके चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया आपका ग्रीन पिन। ग्रीन पिन क्या करता है, जो भी कस्टमर आके अपना डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं। अगर बीच में अगर आपका मोबाइल नंबर, सॉरी पिन नंबर अगर रॉन्ग एंटर कर दिया तो वो थ्रो करेगा। जो भी आपका पिन नंबर जो एंटर किया है, कंफर्म पिन नंबर, वो गलत हो गया तो ये एरर मैसेज दिखा देता है। सो आपको थोड़ा सा देखिए एंटर करना पड़ेगा कस्टमर को। सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद जरूर ये प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपको प्रिंट करके कस्टमर को देना पड़ता है। तो अदर ऑप्शन भी रखा हुआ है, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं।
अभी ये हो गया आपका कार्ड ट्रांजैक्शन और ग्रीन पिन। नाउ इट इज ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट में आपको दो तरीके का ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट मिलेगा। एक डिटेल ट्रांजैक्शन, जैसे ये एजेंट सुबह से शाम तक कितना ट्रांजैक्शन किया है ना, वो सारे का सारे डिटेल्स इधर दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा दिख रहा है इधर। अगर जो भी ट्रांजैक्शन का आप डिटेल दे सकते हो, आप चाहे तो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करके ना वो ट्रांजैक्शन का क्या है वो भी सकते हो आप। ये हो गया ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट और इधर ट्रांजैक्शन समरी भी है। पहले देख लीजिएगा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे देखता है, अगर डिटेल्स कैसे दिख सकता है। एक ट्रांजैक्शन के ऊपर अभी वीडियो में क्लिक कर रहा है, उसका डिटेल मिलेगा आपको। ये वाला हो गया आपका ट्रांजैक्शन डिटेल। ये कार्ड बेस्ड फंड ट्रांसफर है, उसका डिटेल सब कुछ उधर दिखेगा। सिमिलरली ट्रांजैक्शन समरी रिपोर्ट है। समरी रिपोर्ट में आप जाओगे ना, सुबह से शाम तक कैसा कैसा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आपने किया है, एजेंट ने किया है, चाहे तो एईपीएस डिपॉजिट कितना ट्रांजैक्शन किया है। इधर देखिएगा स्क्रीन पे टोटल 12 ट्रांजैक्शन किया है, सक्सेस 6 हो गया है। सॉरी, 6 सक्सेस ट्रांजैक्शन हुआ है, 0 फेल ट्रांजैक्शन है। अमाउंट भी दिख रहा है उधर, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। सिमिलरली एईपीएस विड्रॉवल का भी ऐसे ही दिखेगा, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ फेल ट्रांजैक्शन और टोटल अमाउंट। उसमें बैलेंस इंक्वायरी का भी समरी है, सक्सेस कितना बैलेंस इंक्वायरी किया है, फेल्ड कितना, सक्सेस कितना। तो हर तरीके का हर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का इधर समरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, ताकि एजेंट को अपना जो भी बैलेंस मैच करने के लिए सुबह कितना कैश इन हैंड था, शाम को कितना बचा हुआ है हाथ में, सो इसके द्वारा वो अपने आप अकाउंट्स को मैच भी कर सकता है, रिकनसाइल भी कर सकता है। सो फिलहाल तो अभी इसी इसी डिटेल से ई केवाईसी ऑलरेडी आपने, हाँ ई केवाईसी के लिए आपको उधर भी आपको कंसेंट फॉर्म के लिए अग्री करना पड़ेगा कस्टमर को। अगर लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन से रीजनल लैंग्वेज में, जो भी कस्टमर अगर हिंदी पढ़ना चाहता है, गुजराती, बंगाली सब कुछ है, ताकि वो रीजनल लैंग्वेज में अपना अग्रीमेंट से जो भी है ना वो कंसेंट फॉर्म के लिए के पहले ये करना पड़ता है। 2 बार मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है। बाद में कस्टमर का आधार नंबर, प्रोसीड कीजिएगा। कस्टमर का उंगली पूछेगा फॉर द ऑथेंटिकेशन। एक बार ऑथेंटिकेशन सक्सेस होने से ई केवाईसी डिटेल आ जाएगा यूआईडी से। ये आपने प्रिंट आउट निकाल के जो भी आपका अकाउंट ओपनिंग का है ना उसके साथ अटैच करके आप ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। So these are all about the transaction, financial transaction. Financial transaction मतलब आपका AEPS, विड्रावल, कैश विड्रावल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर। जैसे कार्ड में भी सेम कैश विड्रावल, डिपॉजिट और फंड ट्रांसफर। और ग्रीन पिन भी आपने देख लिया वीडियो ने। ग्रीन पिन अगर जो भी कस्टमर अपना डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकता है, तो ये एजेंट के पास आके अपना डेबिट कार्ड का पिन भी चेंज कर सकता है। बाद में उसके बाद आपने देखा ई केवाईसी कैसे करना है। देन आपको ये भी देखा ट्रांजैक्शन, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट और समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। तो फिलहाल तो इतना ही ऑप्शंस अवेलेबल है। आगे आगे जाते जाते और आपको और ऑप्शंस आपको फैसिलिटेट करेंगे बैंक की तरफ से, तो वो बीबीपीएस हो, जो भी और कुछ अकाउंट ओपनिंग शायद हो सकता है।
So everything it is on the depends on the bank. जैसे जैसे बैंक हमको बोलेंगे ये वाला ये करना है, enable करना है, then it is going to be enabled. New features will be enabled in this same devices. So these are all about the training of the what is about the device कैसे है, कैसे चलाना है, login कैसा करना है और transaction कैसा करना है. अभी आप आगे बढ़ेंगे, then if you have any queries, if you have any queries, आपको जो भी प्रश्न पूछना है, then you can start. एक एक करके भी पूछिएगा. Hello, please go ahead. हेलो, बोलिए जी, बोलिए. हाँ नमस्कार सर. नमस्कार, बोलिए. सर पोस्ट मशीन में सर एक बार हमने बैलेंस इंक्वायरी किया, पुनः जब दोबारा करना चाहा, HDFC बैंक में फुल स्टॉप का डिटेल आ रहा है सर. ऐप काम नहीं कर रहा है. बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद एक मिनट आपको दिखाते हैं. देखिए दिख रहा है सर. हाँ, दिख रहे हैं. पता चल गया. इसको यहाँ कर रहे हैं तो ये लिख रहा है सर. हम बैंक को ये